Good evening, my dear students. Good afternoon, my dear students. So I'm here taking your class on Zoom, and we will continue our morning topic because there was some issue with the video in the morning. So now I'm just re-continuing the same topic. Fine. So let's now continue with the same topic. So we were doing tabular presentation. पहले tabular का meaning क्या होता है? राजवीर बताएगा. राजवीर बताओ, unmute करो अपने आप को. You have the full rights now to unmute yourself and you can speak. राजवीर unmute करो अपने आप को, बताओ मुझे. What is tabular presentation? Rows and column wali. Yes. When we present data in the form of table, in the forms of rows and columns. Okay. So we call that is your, what is that? Tabular presentation of data. So I told you in the morning, there are 3 types of presentation. कौन-कौन से होते हैं 3 types of presentation? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा अभी? बताओ जरा. Who will just tell me this? Raj Sangam will tell me. Yes, unmute करो अपने आप को बोलो. I'll be able to listen to you. Tabular presentation, dramatic presentation, and graphical presentation. Diagrammatic. Fine. ठीक है. Okay. So we are just doing. हम लोगों ने किया था statistical method. Statistical method का कौन सा step है जिसकी हम ऊपर work कर रहे हैं अभी? I told you we have done this. So which step? This we have done, this or this one. कौन सा कर रहे हैं step हम? बताओ मुझे. We are doing which part of the? बताइए जरा. हाँ जी, presentation के साथ कौन सा related है topic? Unmute करके बोलो बेटे, जिसने आंसर देना unmute करके. Organization of data. Yes, so we are concerned with the third step. So I'm talking about now third step. ठीक है? So presentation of data जो है हमारा tabular presentation. Again I'm writing it in long way. ठीक है? So यहाँ पे मेरे पास है that is tabular presentation. This is the name of the chapter. ठीक है? So table की form में, नाम से clear है table की form में and table. अब table में क्या होता है? Rows and columns. अब मैंने सुबह पूछा था rows कौन सी है, columns कौन से हैं? हाँ जी, rows and columns वाली confusion दूर होगी थी morning में कि नहीं? आप लोग confused थे, मैंने जानबूझ के पूछा था. ठीक है? Okay, it is clear. जिसको clear हो गया तो thumbs up भेज सकता है. Okay, ठीक है? So I am just continuing with the next part जो हम लोग कर रहे थे discuss morning वाला. So tabular presentation में हमने किया था meaning, objectives कर रहे थे हम लोग, classification करी थी, उसके बाद मैं करवा रही थी आपको requisites और essentials. Requisites, essentials का meaning होता है कि जो चीजें हमें important way में required है जब हम table बनाते हैं. So what are these things? We will discuss about those. Fine. So here is the next thing which I am discussing. ठीक है? पहले हमने किया था title चाहिए. किसी भी चीज का title that is always required. ठीक है? सो टाइटल, जैसे मैं अभी क्लास ले रही हूँ तो मैं भी तो अपना यहाँ पे टाइटल मेंशन कर रही हूँ, क्या है, चैप्टर कौन सा है, उसके अंदर हम ये टॉपिक कर रहे हैं. सिमिलरली अगर हमें टेबल भी बनाना है तो टेबल के लिए भी हमें टाइटल रिक्वायर्ड है. ठीक है? सो टाइटल इज द फर्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर कि किसके रिगार्डिंग टेबल है. अगर मैं लेती हूँ बच्चों के मार्क्स के रिगार्डिंग तो वो मार्क्स जो है वो शो करेगा टेबल. ठीक है? मैं कहती हूँ हाफ ईयरली जो मार्क्स है उनके रिलेटेड टेबल बनाया मैंने, सो दैट टाइटल विल बी हाफ ईयरली मार्क्स. ठीक है? So that is always given. So next thing is manageable size. Size बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए टेबल का. ठीक है? मैं अपनी तरफ से टेबल डिस्कस कर रही हूँ और वो टेबल का साइज इतना बड़ा है कि बच्चों को मैं बार बार रब कर रही हूँ फिर बना रही हूँ. It will just lead to time consuming things and that will not work for you. Mahak, how are you? Welcome to the class and you're looking smart today. Mahak Preet Singh ji, unmute करो and बोलो. हाँ जी मैम. Good afternoon. Good afternoon मैम. Looking smart today. Thank you मैम. Okay, so you should attend the class every day.
दैट इज Yes, व्हाट आई, ma'am. ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे आपका कौन सा और चीज चाहिए, मैनेजेबल साइज में चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा टेबल, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए टेबल, ठीक है। सो इट शुड बी लाइक जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना हमने डाटा एक्सप्लेन करना है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कितना है टेबल, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव। सो टेबल हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैलेंडर का, वहां पे भी तो टेबल ही बना होता है जिसमें डेट्स, आपकी पूरी हॉलीडेज की लिस्ट बनी होती है सारी। सो दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। तो उसको भी हमने बड़ा अट्रैक्टिव वे में बनाया था। जितना अट्रैक्टिव होएगा उतना आपका टेबल जो है, आपका काम बहुत आसान कर देगा, लोग बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलरफुल होना चाहिए, ठीक है। सो अट्रैक्टिव हो गया। उसके बाद स्पेशल एम्फेसिस। आपने देखा होगा जब हम कैलेंडर देखते हैं, कैलेंडर में भी आपके जो डेज होते हैं उनको उन्होंने कलरफुल वे में मार्क किया होता है। कई बार कुछ सर्कल कर रहे होते हैं, रेड कलर में किया होता है, डार्क, जैसे मैंने स्पेशली देखा होगा संक्रांत वाला दिन है तो उसको सर्कल किया होता है उन्होंने, ठीक है। ऐसे अगर पूर्णिमा है तो वहां पे उन्होंने वो स्टार सा ऐसे करके कुछ बनाया होता है, ठीक है। सो दे जस्ट हाईलाइट द थिंग्स। सो वो वहां पे क्या करते हैं, वो चीजों को और ज्यादा स्पेशल एम्फेसिस देके एक्सप्लेन करते हैं। सेम अगर मुझे लगता है यहाँ पे किसी के मार्क्स कम है तो मैं अगर आपका रिजल्ट ड्रॉ कर रही हूँ तो वहां पे हम लोग लाइन लगा देते हैं। व्हाट इज दैट, वी आर गिविंग जस्ट स्पेशल एम्फेसिस इन द टेबल, ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन द टेबल व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? चलो पॉइंट आप ही बोलते जाओ, कौन बोलेगा? मुस्कान बोलेगी नेक्स्ट पॉइंट। बुक में से बोलो कौन सा पॉइंट है नेक्स्ट। आई नीड टू एक्सप्लेन ओनली, सूट द पर्पस। हाँ जी बोलो मुस्कान, कौन सा ये पॉइंट है? Suit the purpose. सूट द पर्पस। अब मुझे डाटा चाहिए था बच्चों के रिलेटेड, ठीक है। आई नीड द डाटा रिलेटेड टू द हाफ ईयर मार्क्स, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड, मेरे पास बच्चों का डाटा आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू योर like heights, weights, that is useful for me. That is the purpose I'm looking for the data. No. So table का जो डाटा होगा जो हमने ड्रॉ किया उसका एक पर्पस है, एंड जो डाटा हम लोग सिलेक्ट करेंगे दैट शुड बी आल्सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्पस, और वो जो हमारा पर्पस है दैट शुड बी सूटेबल, ठीक है। सो अगर मैंने आप रियली डाटा के रिलेटेड बात करनी है तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। मिस्टर सुखजिंदर, वेलकम टू द क्लास। वेयर इज ही? प्लीज ऑन योर वीडियो। Mr. Sukhjinder, please on your video. सुखजिंदर ऑन योर वीडियो, आपके कैमरा बना होगा लाइक ऑन द स्क्रीन, उसके ऊपर क्रॉस लाइन लगी होगी रेड, उसको क्लिक करो, वो अपने आप हट जाएगी एंड यू विल एबल टू सी अस एंड वी कैन आल्सो सी यू देन। आई नो यू आर अटेंडिंग द फर्स्ट Zoom मीटिंग। हाँ जी, आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, अब सूट द पर्पस पता चल गया किस चीज के लिए, जिसको पूछा गया वही ऑब्जेक्टिव, उसके रिलेटेड अपने इन्फॉर्मेशन जो है उसको हमने क्या करना, शो करना अपने टेबल पे, ठीक है जी। ये चीज होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट कौन बोलेगा? नेक्स्ट बोलेगा अर्श। अर्श नेक्स्ट पॉइंट बोल कौन सा है? स्पीक आउट द नेक्स्ट पॉइंट, हरी अप। Simplicity. सिंपलिसिटी। हाँ जी, टेबल आपका सिंपल होना चाहिए। मैं कुछ वैल्यूज पॉइंट्स में दे दूं, कुछ वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन में दे दूं, ठीक है। सो वो हमारा पर्पस और कॉम्प्लेक्स कर देंगे। डाटा जो हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे वो हमारे टेबल में और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इट विल ऑलवेज मेक डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द डाटा फॉर विच वी हैव ड्रॉन द टेबल, ठीक है। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिंप्लिसिटी वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ डाटा। हाँ जी, सो अगर आपके पास टेबल में, मैं कहती हूँ मेरे पास दो गर्ल्स हैं, जैस्मीन है एक, तो ये, चलो जैस्मीन हमारी संदर है, ठीक है। सो एक संदर मैम है, एक हमारे पास राज संगम है, ठीक है। दूसरी हमारे पास मुस्कान है, दो मुस्कान है तो हम एक मुस्कान तो ले ही सकते हैं ना, ठीक है। सो आई हैव 3 स्टूडेंट्स विद मी। अब अगर इनके मैंने मार्क्स लेने इंग्लिश में, इको में, आईपी में,
जहाँ पे मैंने और किसी सब्जेक्ट अकाउंट्स में लेने हैं, बिजनेस में लेने हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। अब सबके मार्क्स मैं किसी भी करती हूँ यहाँ पे है, मान लो 7 हमारा 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, टेस्ट के अकॉर्डिंगली। सो आई एम जस्ट टेकिंग 10 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी ऐसे टेस्ट हुआ था, तो यहाँ पे 9 आए, यहाँ पे मैं कह देती हूँ आप क्या आए, 8 आए। जस्ट आई एम एज्यूमिंग, आपका 10 मार्क्स का कभी टेस्ट नहीं होगा, ये चीज याद रखो। दिस इज जस्ट लाइक assumption, आई एम डूइंग विद द assumption। कौन लीव कर गया? सुखजिंदर लीव कर गया फिर से। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे करके मैंने मार्क्स लिखे, जस्ट इतने ही रहने देती हूँ, आगे हम लोग जस्ट रिज्यूम करेंगे। सो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है अगेन बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। आई एम जस्ट मेंशनिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे राज संगम के आए 9, यहाँ पे 10 आ गए, यहाँ पे 8, 9 आ गए, यहाँ पे 8 आ गए, यहाँ पे भी 8 आ गए, ठीक है। ऐसे मुस्कान के हैं तो 10 आ गए, यहाँ पे 10 आ गए, यहाँ पे 9 आ गए, यहाँ पे 9 आ गए, 9 आ गए, ठीक है। ये हमने कर दिया। दिस इज नॉट लाइक आई एम डूइंग पार्शियलिटी, आई एम जस्ट टेलिंग यू डाटा भी कंपेयर कर सकते हैं। मैं इसके मार्क्स इसके साथ कंपेयर कर सकती हूँ, इसके मार्क्स इसके साथ कंपेयर कर सकती हूँ, इसके मार्क्स इसके साथ कंपेयर कर सकती हूँ। सो टेबल इज ऑल्सो जो है आपका कंपैरिजन भी करने के लायक हो। सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। सो यहाँ पे रिक्विसाइट आपका जो टेबल है, कंपैरिजन ऑफ डाटा इजीली होना चाहिए, प्लेस्ड इन क्लोज्ड कॉलम्स। सो ये सारे कॉलम्स में ही हमारे पास डाटा अरेंज्ड है। So this is what they said in the next point. So requisites of your table ये चीजें भी required है, ठीक है। So ये भी हमें essential है कि हमारा जो टेबल है उसमें कंपैरिजन करना इजी होना चाहिए। Who has left the class now? कौन आउट हो गया अब? राज संगम। ओके नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट इज कॉलम्स एंड रोज शुड बी नंबर्ड। अब कॉलम्स एंड रोज को हमने क्या करना, नंबरिंग देनी है। यहाँ पे मैंने दी है नंबरिंग, करी है। इसका भी मैं कह सकती हूँ फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड, इसको मैं ऐसे करती हूँ रोमन न्यूमरल्स में लिख लेते हैं, जस्ट मेक इट इन द रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। इनको मैं देती हूँ रोमन न्यूमरल्स में नंबर। यहाँ पे आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ वन। सो हम लोगों को ये भी देनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपका नेक्स्ट चीज कह रहा है। वो और कौन आउट हो गया अभी? सारे घूमते ही जा रहे हैं, मुझे ये तो समझ नहीं आ रही बच्चे। Wait, send me message, let me check it out. राज संगम है तो बाकी कौन गया फिर? हाँ राज संगम तो है। अर्शदीप भी है, सुखजिंदर ही गया, मेरे को लग रहा है सुखजिंदर, एकता, यस एकता लेफ्ट। चलो वी विल डू द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। सो ये हमारा था। इसके बाद कॉलम्स एंड रोज शुड बी नंबर्ड। तो आपका बेस्ट टेबल जो होगा उसमें नंबरिंग होगी, रोज एंड कॉलम्स सबकी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्लैरिटी। देखो अब अगर मैंने ये टेबल बनाया तो इसमें आपको क्लैरिटी है क्या चीज कहाँ पे शो कर रही हूँ, ये मार्क्स शो कर रही हूँ, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स है, इनके अलग अलग मार्क्स है सारे सब्जेक्ट्स में, यहाँ पे इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है सबके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो आपको क्लियर है प्रॉपर, जो आपका टेबल होगा वो आपको क्लैरिटी के साथ सारा डाटा एक्सप्लेन करेगा। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ठीक है। नेक्स्ट देखो यूनिट्स। हाँ जी, मार्क्स का तो कोई यूनिट नहीं है। अगर हाइट्स का लेते हम लोग, जब पैसों का लेते तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा होता रुपया या करोड़ या डॉलर्स वट एवर, वी हैव टू मेंशन इट इन द यूनिट्स। अगर हाइट्स लेते सबकी, हम उसके रिलेटेड टेबल लेते तो हम सेंटीमीटर्स या इंचेस या फिर फीट्स वगैरह वो मेंशन करते। ऐसे ही अगर किसी के हमने वेट की बात करते तो किलोग्राम्स एंड ऑल यूनिट्स भी मेंशन होते हैं वहां पे, ठीक है। सो ये भी आपकी टेबल की एक इंपॉर्टेंट चीज है। वेट इन केजी, रुपीज, प्राइस जो होगा आपका ऐसे बताया होगा,
ठीक है, उसके बाद सुटेबली अप्रोक्सीमेटेड। आप बहुत कम होगा कि आप टेबल में जो वैल्यूज है इन पॉइंट्स या फ्रैक्शंस में देखोगे, आपको मैक्सिमम टाइम्स उन्होंने अप्रोक्सीमेशन में वैल्यूज दी होंगी, नियर अबाउट दिस, नियर अबाउट दिस, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेशन में वैल्यूज आपको बहुत मिलेंगी। सो सुटेबली अप्रोक्सीमेशन जो होगी, फिगर बहुत बड़ा नहीं होगा, इट शुड बी सुटेबल वन विच दे आर यूजिंग हियर, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटेड राउंडेड ऑफ जो होते हैं आपके वैल्यूज, वो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड। जो भी हमारे टेबल्स होते हैं सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली। अब मैं ये 2 नंबर यहाँ पे नहीं डालूंगी, 3 वाला यहाँ पे नहीं डालूंगी, ठीक है। इट इज अप टू द प्रॉपर ऑर्डर विच आई नीड टू फॉलो, ठीक है। साइंटिफिकली अप्रूव्ड जो ऑर्डर है उसको फॉलो करके मैं हमेशा आपका टेबल बनाऊंगी, ठीक है। सो ये चीज उन्होंने साइंटिफिकली प्रिपेयर किया जाएगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, किसी के कोई मार्क्स यहाँ पे ओवरलैप नहीं होंगे, ठीक है। डबलिंग नहीं हो जाएगी कि मैं उसके एक बार मैंने मार्क्स लगा दिए दूसरी बार फिर लगा दूं, नो, इट इज जस्ट गिव यू प्रॉपर द व्यू। आपने जो आपने मार्क्स किए हैं वो क्लियर एंड कट आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे टेबल में, ठीक है। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू, क्लियर है सबको? अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप भेजो बेटा जी, अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप यू कैन सेंड मी। ओके, सबको हो गया क्लियर, वेरी गुड। चलो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट कर रहे हैं अभी, दैट इज द पार्ट्स ऑफ अ टेबल। अब हर टेबल के कुछ पार्ट्स है, ठीक है। सो इफ आई एम मेकिंग एनी टेबल तो मेरे पास भी टेबल के पार्ट्स होंगे। सबसे पहले जब भी आप बुक में भी देखते हो टेबल या क्वेश्चन आपके पास होता है, तो टेबल अगर देखोगे तो टेबल के ऊपर लिखा होता है फिगर डैश पॉइंट 1 और फिगर 1.2, फिगर 4.1। सो व्हाट इज दैट? दैट इज टेबल नंबर। इस टेबल के ऊपर ये वाला नंबर है। सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट आता है जब भी हम टेबल बनाते हैं, तो एक गुड टेबल में हमेशा हमें टेबल नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। सो टेबल नंबर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्लियर है? सो पार्ट ऑफ द टेबल में हमारे पास पहली चीज क्या आ जाएगी? वी रिक्वायर टेबल नंबर, ठीक है। सो वी रिक्वायर टेबल नंबर। whenever we are making a table तो हमें क्या क्या पार्ट्स में चाहिए, मैं बस मेंशन कर रही हूँ, आप लोग देखते जाओ। सो हमेशा टेबल में आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है जी। हाँ जी मिस्टर बाजवा जी, आपकी वीडियो ऑफ हो गई है, क्या बात है? आज तो अभी तो 103 ही हुए थे, अभी कौन सा ज्यादा टाइम हुआ है? अभी तो चाय नहीं पी रहा है ना। हाँ जी। सो फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज टेबल नंबर, ठीक है। जब भी हमने अच्छे एक टेबल बनाना तो उसके लिए टेबल नंबर भी गिवन होगा हमें, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है व्हेन देयर आर मेनी टेबल्स, तो दीज टेबल्स शुड बी नंबर्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, सीक्वेंस में होंगे फर्स्ट एंड सेकंड। हम लोगों ने ना, आप लोगों को पता नहीं, आप लोग जब जाओगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपके पास एक सब्जेक्ट होना है OR, उसको कहते हैं ऑपरेशंस रिसर्च। आपका पहला टेबल बनता है, फिर दूसरा टेबल बनता है, फिर तीसरा बनता है, ऐसे करके मतलब कम से कम 10 टेबल उस क्वेश्चन में होते हैं। और आपका अगर एक भी टेबल में थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी या कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तो आपको पूरा टेबल दोबारा से बनना है। सो इसीलिए टेबल जब भी हम बनाते हैं, हमें बहुत ज्यादा टेबल बनाते हैं, तो हम लोग टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 ऐसे नंबरिंग जरूर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज the table number may be given on the top of the table or at the beginning of the title of the table। जैसे मैंने आपको बोला फिगर 1.2, ठीक है, ऐसे शुरू में ही मेंशन होगा टेबल, आपको जब भी मिलेगा शुरू में ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वो क्या कहते हैं? टाइटल। टाइटल भी हमने कर लिया, टाइटल होना चाहिए, ठीक है। सो इट इज लाइक सूटेबल टाइटल accompany every table, ठीक है। टाइटल इज ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ टेबल। जो भी आपको टेबल में शो करे, जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे मैंने मार्क्स, हाफ ईयरली मार्क्स का डाटा शो करना, दिस इज टेबल 1 एंड अंडर दैट आई एम शोइंग द मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तो वो जब लेती हूँ तो दैट विल बी द फर्स्ट टेबल। उसके बाद मैं कहती हूँ सेकंड टेबल जो है दैट इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स, तो वो आ गया। उसके बाद तीसरा जो टेबल लेती हूँ मैं इंग्लिश का ले लेती हूँ, ठीक है। सो वो सारे जो मार्क्स में शो करूंगी दैट इज जस्ट शोइंग मी द कंटेंट, कि क्या चीज मैं शो कर रही हूँ, तो उसको मैंने टाइटल में मेंशन कर देना, ठीक है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है टेबल की, और वो अपने आप में क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, उसमें कोई भी आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको अंडरस्टैंड इजीली होना चाहिए, तो वो चीज होती है।
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज इन सम केसेस सॉरी, टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड शुड बी प्लेस्ड इन अ प्रोमिनेंट प्लेस यूजुअली बिलो द टेबल नंबर। अब अगर मैंने टेबल नंबर ये दिया है, टेबल इज 1.3, यहाँ पे कहती हूँ मार्क्स ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, किस ईयर की, 2020। ठीक है, अब ये आपकी हो गया टाइटल, इसी तरह से आपका टाइटल होता है। ठीक है, तो टाइटल आपका ये रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट में आपका ये टेबल का पूरा उन्होंने फॉर्मेट भी दिया हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, आगे देखो। अब इसके बाद कैप्शंस होंगी, कॉलम के ऊपर भी कैप्शन होंगी एंड हेडिंग्स आपकी जो है कॉलम के ऊपर कैप्शंस होंगी। ठीक है, कॉलम की हेडिंग्स को हम लोग कैप्शंस भी कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में और बच्चे गलती कर देते हैं हमेशा। ठीक है, और जो आपकी रोज की हेडिंग्स होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टब्स। ये चीज याद रखनी है। देखो, जब हमने ये कॉलम्स की हेडिंग दी, मैं कहती हूँ कॉलम 1, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, आई जस्ट written like this is column 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी, जब मैं कहती हूँ कॉलम्स में मैं क्या शो कर रही हूँ, I'll be just making it like मैं कर रही हूँ यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, ये चीज आ गई, दिस इज द थिंग। नाउ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ये आ गया। यहाँ पे रोज में मैं क्या शो कर रही हूँ, नेम, स्टूडेंट्स का नेम कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया। सो रोज में हमेशा मैं मार्क आपका नेम करूंगी शो। सो आई जस्ट रिटन एक्स वाई जेड, दीज आर द स्टूडेंट्स, उनका नाम है एक्स, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई, एक का नाम है जेड। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके लिए जो मैंने हेडिंग दी है, ये रोज के लिए जो हेडिंग्स थी मेरी, उसको मैंने क्या नाम क्या कहा था कि मैंने नेम्स दिए। सो इसको हम लोग कहते हैं स्टब्स। क्या कहते हैं इसको, स्टब्स कहते हैं। और ये जो मैंने कॉलम्स के लिए हेडिंग दी थी उसका जो नाम दिया था, ठीक है, मैंने कहा मार्क्स शो कर रहे हैं हर कॉलम में, सो दिस विल बी योर कैप्शंस। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं कैप्शंस। याद रखना, इसको कहते हैं कॉलम हेडिंग्स। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं रो हेडिंग्स। ऐसा लिखना है बुक के ऊपर, मार्क करके ऐसे लिख लो, इट विल बी गुड, भूलोगे नहीं। सी से सी, कॉलम हेडिंग, कैप्शंस। ठीक है, रो हेडिंग आर एस कर लो या एस आर कर लो, वैसे ट्राई कर लो। सुशांत सिंह राजपूत एस आर। ठीक है, शाहरुख खान एस आर, उसको भी कहते हैं एस आर के। वहां से शॉर्ट फॉर्म याद रख लो कि ये आपका क्या हो जाना है, रो हेडिंग्स है, और ये क्या है, कैप्शंस फॉर कॉलम हेडिंग्स। ठीक है, ये चीज याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आ जाता है। स्टब्स और रो हेडिंग्स हो गया। बॉडी ऑफ द टेबल, टेबल में जो डाटा मैं शो कर रही हूँ ये वाली बॉडी ऑफ द टेबल हो जाएगी। इसके अंदर मैंने मार्क्स फिल करने हैं ना, तो इट विल बी योर बॉडी ऑफ द टेबल। तो इसके अंदर हम लोग सारा मेन कर रहे हैं शो। सो दिस इज बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल में सारे आपके डाटा जो आएंगे फिक्स होंगे, डिफरेंट कॉलम्स डिफरेंट सारे मेंशन करेंगे। इसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अगर तो ये मार्क्स इनमें तो सच कोई नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हाइट्स, कॉलम्स में मैं हाइट्स शो कर रही हूँ, जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट, हाइट्स शो कर रही हूँ, तो इट विल बी ऑल मेंशन्ड इन द यूनिट। कौन से यूनिट्स में होता मेंशन, सेंटीमीटर्स, इंचेस और फीट्स में होता। दैट विल बी और क्या आ जाता वहां पे हमारा, क्या होता हमारे पास कि हमने एक प्रॉपर परमवीर, वेलकम टू द क्लास, गुड आफ्टरनून, कनेक्ट योर ऑडियो एंड ऑन योर वीडियो बेटा। परमवीर, वीडियो ऑन कर लो अपनी। हाँ जी, सो इतना सा क्लियर हो गया जितना हमने अभी तक किया, जितने हमने पार्ट्स ऑफ टेबल करे हैं सबको क्लियर हो गया। पहला क्या किया था, टाइटल, टाइटल किया था। टी से पहले वाला भी हमारा क्या था, टेबल नंबर, फिर टाइटल था, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, टाइटल के बाद कौन बताएगा, सिमरन बताएगी, सिमरन बताओ। सिमरन, टेबल Captions. टाइटल, यस। कैप्शंस क्या होती है, कौन बताएगा, अर्श बताएगी, अर्श कैप्शंस क्या होती हैं।
अर्श मैम कैप्शंस हेडिंग होती है और इसे हम कॉलम्स कहते हैं मतलब कॉलम्स की हेडिंग होती है, ठीक है, कॉलम की हेडिंग है। हाँ जी, अब नेक्स्ट वाला कौन बताएगा, उसके बाद क्या किया तुमने? राजवीर सिंह जी बताइए। रो हेडिंग। रो हेडिंग क्या कहते हैं? रो हेडिंग का नाम क्या होता है? सब। टब्स, ठीक है, सो वो कहते हैं हम लोग। और उसके बाद बॉडी ऑफ द टेबल में क्या आती हैं चीजें? बॉडी ऑफ द टेबल क्या क्या चीजें आती हैं? जो डाटा आपके पास है जिसको डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स में हमने प्लेस किया है, तो वी कॉल दैट इज द बॉडी ऑफ द टेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हमने कैसे मेजर करा है, कौन सा डाटा है, किस में मेजर कर रहे हैं, तो दैट वी आर ऑलवेज मेंशनिंग विद द, अगर वेट्स की बात कर रहे हैं तो केजीज में होगा, पाउंड्स में हो सकता है, ठीक है। अगर हाइट की बात करें सेंटीमीटर्स, मीटर्स, इवन आपके फीट्स एंड इंचेस में हो सकता है, ठीक है। अगर उसके बाद हम लोग बात करें किसी और चीज की, जैसे मनी है, पैसा है, तो इट मे बी इन डॉलर्स, इट मे बी इन आई कैन से डॉलर्स हो सकता है, पाउंड्स हो सकते हैं इवन, ठीक है। वहां पे करेंसी होती है, क्रोने कितने आ जाते हैं, यूरोज, सो यू कैन टेक इट इन रुपया ऑल्सो, सो वी कैन टेक इट इन एनी फॉर्म, ठीक है। सो दैट वी कैन शो इट एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा हेड नोट्स। हेड नोट्स कब देते हैं हम लोग? हेड नोट कब होता है बेटा जी? शुरू में, जब हम टेबल लिखते हैं, टेबल का टाइटल लिखते हैं, उसके बाद आपका हेड नोट होता है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इट इन दिस, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन। हाँ जी, so this is the thing which I'm talking about. क्लियर है जी? क्लियर है, सुन रहा है सबको? मैंने अनम्यूट तो कर दिया अपने आप को, ठीक है। सो दिस इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, हेड नोट आपका हमेशा टेबल का जो नंबर है, टाइटल है, उसके नीचे दिया होगा। लाइक द डाटा इज रिप्रेजेंटिंग मिलियंस ऑफ पीपल, नंबर है ना एक, तो वो उसके नीचे उन्होंने लिखा होगा इतने करोड़ है, इतने मिलियंस है, वो सारा मेंशन किया होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं हेड नोट में दिया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सोर्स नोट। सोर्स नोट में आपका लास्ट में दिया होगा, सोर्स मतलब कहाँ से ये चीज ली गई है, ठीक है। सोर्स नोट जैसे आप लोग लिखते हैं ना, आपके अकाउंट्स में भी तो होता है, लास्ट में आप लिखते हो नरेशंस एंड ऑल, उसके बाद नीचे लिखते हो ना एक, बनाते हो आप, क्या कहते हैं उसको, नोट्स ही कहते हैं शायद, एंड में। सोर्स नोट तो आएगा एंड में, हमने कहाँ से ये डाटा लिया है, तो सोर्स नोट हमेशा मेंशन होता है। जैसे आपके मैंने कोई डाटा डिस्कस करूँ तो उसके नीचे जो लास्ट में लिखा होगा बाय इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो जो है दैट इज द सोर्स नोट विच वी आर गिविंग, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आती है दैट इज फुट नोट्स। फुट नोट में लास्ट में उन्होंने क्या मेंशन किया है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या राउंडेड ऑफ डिजिट्स जो करे हैं, वो चीज आपकी मेंशन करता है फुट नोट्स में, ठीक है जी। आपके एडजस्टमेंट वगैरह करते थे, उसके बाद वो लास्ट में करते हैं कुछ सेटिंग, तो उसको फुट नोट्स भी कहते हैं, ठीक है जी। सो ये आपके टेबल का है फॉर्मेट। फॉर्मेट अब आपका देखो एक 5.7 पेज पे दिया हुआ है। सी द फॉर्मेट ऑफ योर टेबल ऑन पेज नंबर 5.7, प्रॉपर पूरा टेबल बना हुआ है। चेक करो, जो जो चीजें मैंने कही है सारी वही है, आपको समझ आ रही है? किसी की कोई क्वेरी है तो यू कैन स्पीक। परम अपनी वीडियो ऑन करो। परम, परमवीर, परमवीर अपनी वीडियो ऑन करो, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा। आई एम नॉट फीलिंग गुड विद दिस। परमवीर फिर रहने दो, क्लास मत लगाओ, आपने वैसे भी मिड ऑफ द लेसन में ज्वाइन किया है, फिर वीडियो नहीं ऑन करनी तो। क्या आई एम वेटिंग, जस्ट ऑन योर वीडियो क्विकली। हाँ जी, सो टेबल, कोई किसी को कोई पॉइंट जो नहीं क्लियर है बता दो मुझे। एवरीथिंग इज क्लियर?
I guess everything is clear to you. Grade 11 students. Clear? No doubts till now? Okay. So let me continue with the next thing. So आगे है types of your tables. ठीक है, आज सिर्फ हम दो करेंगे मेनली जो आपको करवा रही हूँ, दैट इज ऑब्जेक्टिव और पर्पस. टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और पर्पस. दो तरह की होती है, एक होता है स्पेशल पर्पस, एक होता है जर्नल पर्पस. ठीक है, ये आपका पेज नंबर 5.8 पे दी हुई है हेडिंग टाइप्स ऑफ टेबल्स. So there are basically we have three types. One is on the basis of objective, another is on the basis of nature, and the last one is on the basis of extent of coverage. ठीक है, so उसके बेसिस पे है. यहाँ पे हम लोग जो अभी करेंगे that is objective और पर्पस बेस्ड टेबल. सो ऑब्जेक्टिव बेस्ड, अगर जब पर्पस बेस्ड हम लोग देखें तो हमारे पास दो तरह के टेबल है. वन इज जर्नल पर्पस एंड अदर इज फॉर स्पेशल पर्पस. ठीक है, नाम से काफी चीजें वैसे क्लियर हो जाती हैं, कहीं कहीं पे तो कंफ्यूजन हो जाती है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज क्लियर. हाँ जी मैडम, अभी नहीं, वीडियो ऑन कर लो अब. यस, इट्स बेटर. आज भी टर्बन की प्रॉब्लम होगी पक्का है ना मैडम? तभी नहीं वीडियो ऑन हो रही थी. अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. यस मैम. तो पहले ही कैप डाल के यार बैठा करना, ऐसे नहीं. मैम टुडे आई फॉरगॉट टू जॉइन. वही तो कह रही हूँ, अभी लेट हो आप. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग. सो जर्नल पर्पस टेबल क्या होता है? जर्नल पर्पस टेबल में क्या करते हैं हम लोग? रॉ डाटा, ठीक है, इन अ ग्रेट डिटेल एंड कवर्स वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सेम सब्जेक्ट. एक ही टेबल होगा, वो कितनी चीजों के लिए हम लोग यूज कर लेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं जर्नल पर्पस टेबल. एक टेबल था मेरे पास, ठीक है, उसको मैंने कितने पर्पस के लिए यूज कर लिया. जैसे सेंसस सर्वे वाली कोई इंफॉर्मेशन आती है, हमने उसको अरेंज करके रखा और उसी को हमने कितने पर्पस के लिए यूज कर लिया. हमने स्टैटिस्टिक्स में यूज कर लिया, हमने किसी और मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी यूज हो गया, गवर्नमेंट के लिए भी एनालिसिस करने के लिए हो गया यूज. सो वी कॉल दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर जर्नल पर्पस टेबल. ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए कर लेंगे. सो प्रेजेंट द डाटा विदाउट एनी स्पेशल एनालिटिकल पर्पस. यहाँ पे कोई भी एनालिटिकल पर्पस नहीं था हमारा जब हमने डाटा कलेक्ट किया. ठीक है जी, यहाँ पे कोई भी एनालिटिकल पर्पस नहीं था जिसके लिए डाटा कलेक्ट किया. जनरली हमने डाटा कलेक्ट किया और वो डाटा हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, सच टेबल्स आर यूजुअली लार्ज इन साइज एंड जनरली गिवन इन द अपेंडिक्स फॉर रेफरेंस. ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड में दिया होता है. जैसे आपका लॉग टेबल वगैरह होते थे ना, अपेंडिक्स में दिया होता था, एंड में. बुक्स में मैथ्स की बुक भी देखोगे, सॉल्यूशन वगैरह एंड में दिए होते हैं, अपेंडिक्स टाइप. ठीक है, तो आप अपने पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो इट विल बी एट द अपेंडिक्स ओनली, एंड में रहेगा. ठीक है, सो दीज आर जनरली इन द गिवन इन द अपेंडिक्स फॉर रेफरेंस. सो ये मेनी पर्पस के लिए यूज हो सकता है. एंड ये जो है दीज कंटेन्स एक्सटेंसिव रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा यहाँ पे वो यूज कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल. अब इसी के लिए दूसरा नाम क्या है? रेफरेंस टेबल, क्योंकि ये रेफरेंस में होगा, अपेंडिक्स में मिलेगा आपको एंड में. ठीक है, डिटेल्ड वन होएगा, आप उसमें से इंफॉर्मेशन ले सकते हो. लॉग टेबल, ये तो उन्होंने कितनी वैल्यूज दी होंगी, हमें तो एक आधी वैल्यू चाहिए होगी ना अगर क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहे हैं तो. सो इट इज ऑलवेज गिवन इन द रेफरेंस, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया रेफरेंस टेबल ऑल्सो एंड रिपोजिटरी टेबल ऑल्सो. ठीक है, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू. क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखो. अब नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस टेबल. स्पेशल पर्पस एक पर्टिकुलर इंक्वायरी, एक पर्टिकुलर चीज है, उसी के लिए हमने डाटा कलेक्ट किया और उसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द टेबल. ठीक है, उसी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है इन द टेबल फॉर्म. ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज स्पेशल पर्पस टेबल. यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, प्रोडक्शन फिगर्स ऑफ अ कंपनी फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स. काफी सालों से जो प्रोडक्शन हो रही थी हमारी कंपनी में, उसको हमने लेना है यहाँ पे रेफरेंस में. ठीक है, सो एक पर्टिकुलर पर्पस है जिसकी हमने इंफॉर्मेशन लेनी है. सो वी कॉल दिस स्पेशल पर्पस टेबल. नेक्स्ट इज
These tables are generally very brief and are used to present the results of analysis of data. ये जो होते हैं जनरली ब्रीफ होंगे, मतलब टू द पॉइंट होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होंगे, ब्रीफ फॉर्म में होंगे. ठीक है, सो ब्रीफ में होने की वजह से क्या होना है इसका, हमें फायदा क्या होता है कि ये आपको कॉम्प्लेक्स डाटा नहीं देंगे, एनालिसिस बड़ा इजीली हो जाएगा, फटाफट हम लोग एनालिसिस कर लेंगे. क्या ये चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सेल्स बढ़ रही थी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही थी कि कम हो रही थी, वो इजीली हमें पता चल जाएगा. एक ही कंपनी का हमने ईयर वाइज कंपैरिजन किया ना. ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग टेक्स्ट टेबल भी कहते हैं, समरी टेबल भी कहते हैं, एंड एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं. ठीक है, इसके लिए अदर नेम क्या है, टेक्स्ट टेबल, TEXT, टेक्स्ट टेबल, एनालिटिकल टेबल, एंड व्हाट एल्स इज द नेम, दैट इज, हाँ जी राजवीर बताएगा क्या है अदर नेम, और क्या कहते हैं, समरी टेबल. हाँ जी, अब राजवीर सारे के सारे नाम करेगा रिपीट. हाँ जी बोलो, व्हाट आर द नेम्स फॉर योर स्पेशल पर्पस टेबल. बाकी भी करके रखे, मैं किसी से भी पूछूंगी अभी. टेक्स्ट टेबल, समरी टेबल ते एनालिटिकल. ओके. हाँ जी परम, आपने सुना ये तो नहीं सुना परम. मुस्कान, मुस्कान प्रीत जी आंसर देंगे मुझे अभी. Text, summary, and analytical table. Okay, and now Kiran Saini will give me answer for general purpose table. What are the names given to that table? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो. Reference table and respiratory table. रिपोजिटरी, Repository table. क्या हो गया, रेस्पिरेटरी, Repository. हाँ रिपोजिटरी. ठीक है, क्लियर है, नाम से गलती मत कर देना. ओके चलो, सो इट इज क्लियर, दैट्स इनफ फॉर टुडे. कि और कुछ करवा दूं, थोड़ा सा करवा दूं, मुझे लग रहा है ज्यादा मजा आया इस वाली क्लास में. मैं सबको सामने देख पा रही हूँ और आप लोग भी बड़े अच्छे से कर पा रहे हो, है ना. सही है, ऐसे क्लास ले लिया करो फिर रोज. पक्का, सारे नहीं, सबने नहीं बोला ऐसे. यूट्यूब पे ठीक है, हम भाग जाते हैं, मैम को पता तो नहीं चलता. जैस्मिन अंदर हंस रही है. चलो, आई एम जस्ट मेकिंग द व्यू चेंज नाउ. ठीक है, सो गैलरी व्यू कर रही हूँ अभी. हाँ जी, सो हो गया आपका टॉपिक आज का. फिर हम लोग कर रहे हैं आपकी एंड क्लास. ठीक है, आई विल पोस्ट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, मैं अपने चैनल पे कर दूंगी पोस्ट, आप लोग देख सकते हो. जिसको ये वाला जो आज का टॉपिक जिनका मिस हुआ, आज बड़े लोगों का हुआ मिस, मजा आएगा, कोई बात नहीं, लेट देम मिस दिस. ठीक है ना, तभी मैंने न्यू टॉपिक करवाया है. दे शुड आल्सो कम इन द क्लासेस. दे आर जस्ट टेकिंग लाइटली कि मैम बस रिवीजन करवा रहे हैं. ठीक है, बिकॉज मैं थोड़ा पीछे रह गई थी सर से, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं करवा दूं आपका टॉपिक, थोड़ा और गियर अप हो जाएगा हमारा इवनिंग में. ठीक है, बाकियों के लिए मैं बोल दूंगी लिंक देख लेना, आप करना उसके बाद देख देख के. चलो ठीक है जी, गुड इवनिंग ऑल. अभी आपकी मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स की है इवनिंग में क्लास विद शमशेर सर. मैं आपकी वो भेज देती हूँ आपको रेफरेंस के लिए. मैम मुस्कान, सुबह की थी क्लासेस की. क्या करो बेटा, हम लोग मैम भी तो ये तीन क्लासेस. रिकॉर्डिंग हो रही है मुस्कान जी. कोई बात नहीं. I know, but we are on duty and you need to learn. That's it. ठीक है, चलो बाय बाय. मैं अपनी तरफ से रिलैक्स कर देती हूँ. अभी 1 घंटा है, आप लोग एंजॉय करो, उसके बाद आप क्लास लगा लेना सर की. और तो कोई क्लास नहीं है, मुस्कान एक ही है, एक ही क्लास है. पीई की. हाँ, पीई की क्लास में तो कोई बोर नहीं होता, इतनी मजेदार क्लास होती है. वो सुबह भी थी ना शमशेर सर की, तो फिर 9 o'clock भी थी, वो तो सबने लगाई 9 o'clock वाली. अच्छा, किरण लगा रही है, किरण
मैम लगानी पड़ेगी, मम्मा के फोन पे भी मैसेज आता है, इसलिए लगानी पड़ती है। बाकी तो ह्यूमैनिटीज वाला कोई नहीं है। चलो जैस्मिन खुश हो रही है, जैस्मिन सुंदर बड़ी खुश हो रही है, मैं ह्यूमैनिटीज वाली नहीं हूँ। अच्छा है, मुस्कान भी खुश हो रही है। चंगा सिमरन स्माइल आपके फेस पे देख रही हूँ मैं अच्छे से। चलो ओके बाय, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। मैं इसका लिंक डाल दूंगी, फिर बाकी सारे भी आपको देख सकेंगे अच्छे से, और वो भी पढ़ लेंगे सारे। चलो ठीक है, ओके जी, बाय बाय। परम ने दोबारा से ज्वाइन किया बेचारे ने। परम आप लेट हो गए, आप दोबारा से देख लो। आप करणवीर भी कर रहा है ज्वाइन। लेट हिम आल्सो जॉइन, लेट्स सी। लेफ्ट कर गया शायद, लेफ्ट कर गया। चलो ओके बाय, ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मम्मी पापा का ख्याल रखो, अपना भी रखो, ठीक है। एंजॉय दिस टाइम विद योर पेरेंट्स। इस बार तो 2020 हमें वो कह रहे हैं होली से लेके दिवाली तक पूरी छुट्टियां ही रहेगी। छुट्टियां तो नहीं है, वी आर स्टडिंग एट होम, होम स्कूलिंग होगी इस बारी, ठीक है। चलो ओके।